راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں اس وقت ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری اس پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ 10:02 پر شروع ہوا اور اس پورے واقعے کا جو اختتام ہے وہ 10:10 پہ ہو گیا، یعنی 10:02 سے لے کے 10:10 تک یہ ٹوٹل 8 منٹ کی کارروائی تھی، جس کے اندر 4 دہشت گرد اور الحمدللہ وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی ایپریٹس تھا جس میں رینجرز، پولیس اور سارے واقعے میں جو 4 دہشت گرد تھے وہ جب آؤٹر بیریئر پر آئے تو انہوں نے ایک تھوڑا اسٹرے بلٹس فائر کی، جس سے کچھ پاسر بائی سیویلین پاسر بائی زخمی ہوئے، جن کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جو فرسٹ پکٹ تھی ہماری، ادھر سے انٹری کی کوشش کی۔ ایک بہادرانہ مظاہرہ تھا ان سیکیورٹی کے معمول ان جوانوں کا، جنہوں نے 2 دہشت گرد کو پہلی انٹرنس پہ مار گرایا اور 2 آگے کی طرف روانہ ہوا۔ اس پروسیس میں ایک جو پولیس سب انسپیکٹر تھے وہ شہید ہوئے، جو کہ آؤٹر پکٹ کے اوپر تھے۔ اور جس طرح باقی 2 دہشت گرد آگے آئے تو یہ اگلے 5-6 منٹ میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی کے باقی اداروں نے ان کا مقابلہ کیا، فائر ایکسچینج ہوا اور الحمدللہ 10:10 پہ باقی 2 بھی مارے گئے۔ اور اس طرح جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ تھی اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے، وہ جو انٹرنس روڈ ہے اسی کے اوپر یہ 4 مارے گئے۔ ہمارا جو اس پورے واقعے کا جو ریسپانس تھا وہ بیس تھا کمبائنڈ نیٹ ورک آف ویریس پکٹس، جس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا رینجرز، پولیس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تھے، ان تینوں پہ مشتمل تھا، ریڈی تھا ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ اریٹ تھا، کسی بھی واقعے کو ٹیک آن کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے جس کی وجہ سے یہ 8 منٹ کے اندر یہ وائلنس ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک SOP کے تحت جس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان رینجر سندھ کی اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے الحمدللہ، اور پولیس کی ریپڈ ریئیکشن فورس ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم میں ایکشنز میں ماہر ہے۔ الحمدللہ اس واقعے کے ودن 10 منٹس پاکستان رینجر سندھ کی ریپڈ ریئیکشن فورس اور پولیس کی ریپڈ ریئیکشن فورس یہ دونوں واقعے پہ پہنچی اور انہوں نے پوری بلڈنگ کو اگلے 25 منٹ کے اندر کلیئر کر لیا، اس کے ریمننٹس کو کلیئر کر لیا تاکہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی روٹین کی کارروائی ہے وہ اس تعطل کا شکار نہ ہو۔ اس پورے انسیڈنٹ میں جو ہمیں چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے ایک وہ گاڑی ہے جس کے اندر وہ آئے اور گیٹ پہ انہوں نے کھڑی کی اور اترے، ایک وہ گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ریکوریز ہیں جس کی لسٹ میرے پاس ہے، میں اس کی زیادہ تفصیلات میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو اتنا بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ 4 دہشت گرد اس عزم کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں اندر جائیں گے اور نہ صرف وائلنس کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، بلکہ ہوسٹیج بنانے کے بھی ارادہ رکھتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ہر ٹیررسٹ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا، جس میں اس کے پاس AK-47 رائفلس تھیں، ایک کے پاس گرنیڈ لانچرز تھا، بہت سے گرنیڈز تھے، ہینڈ گرنیڈز بھی تھے اور لانچر کے ساتھ جو گرنیڈ لگتے ہیں وہ بھی تھے، کھانے پینے کا سامان تھا اور بہت سا ایمونیشن تھا۔ لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مین بلڈنگ کی انٹرنس پہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا استقبال بھرپور کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ سب نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس واقعے کی ذمہ داری BLA کا مجید گروپ ہے، جس نے
क्लेम किए हैं और कुछ नाम भी शाये किए हैं, जिसके ऊपर हतमी फैसला अभी हम इन्वेस्टिगेशन के बाद करेंगे। मेरे तासुर में इस वाक़े के विजुलाइज ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ये दहशतगर्दों के क्या अज़ाइम थे। मेरा ख्याल में नंबर 1 was to hit Pakistan's economic icon, which was Pakistan Stock Exchange building. We all know कि बहुत important building है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक कदम रफ्तार है, उसको हिट करना और इसके साथ साथ पाकिस्तान की खुशहाली को ठेस पहुंचाना, इधर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करना और जाहिर बात है इस दहशतगर्दी के दौरान कैजुअलिटीज मैस स्केल पे कैजुअलिटीज करके होस्टेजेस बना के इस शहर कायद की जो रौनकें हैं या उसका जो अमन है उसको खराब करना और पूरी दुनिया में यह तासर देना कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की बहादुराना जो अमल था उसके बायस वो अपने किसी भी हदफ में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जो उनका पहला हदफ था जिससे वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी को डाउनग्रेड करना चाहते थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ कि मैं अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट गया, वहाँ पे जो तमाम हमला है जो कि 1000 से ऊपर का हमला है वो उस तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह अटैक के आधे घंटे के बाद वो क्योंकि बिल्डिंग में थे सारे, वो सारे के सारा काम रूटीन के मुताबिक चल रहा था। बल्कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज 250 पॉइंट्स कल की एक्टिविटी से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्टिविटी है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो टेररिस्ट जो हदफ अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। तो ये ब्रीफ डिटेल्स थी वाक़े के बारे में जो कि मैंने आपको बता दूं। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, रेंजर्स, पुलिस, यहाँ के बाकी जो हमारे इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के, वो सरगर्म अमल हैं। हम इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड वी फाइंड आउट कि काम वो गैप्स थे जिसके अंदर से ये निकले और ये कौन लोग हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी नताइज होंगे उससे आपको आगाह किया जाएगा। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो बताइए, मैं उनका जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि क्या इसमें चाहूँगा क्या इसमें गैर मुल्की कोई इनको सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि ये अकेले तो इस तरह दहशतगर्द नहीं आ सकते, इनको किन किन की सपोर्ट हासिल थी? आपने जो सवाल किया है, जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है जाहिर बात है वो एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं होता, उसके पीछे बहुत महरक़ात होती हैं। और ये जो शहर कायद में पिछले 1.5 साल से अल्लाह का शुक्र है कोई टेररिस्ट का इंसिडेंट नहीं हुआ था। इसके ऊपर एज डीजी रेंजर्स आईजी साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम अक्सर अपने ख्यालात का इजहार करते थे आपस में और अपना रिस्पांस को अपडेट करते रहते थे। बिल्कुल ये जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशली मैं नाम लूंगा रॉ का, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मैं इसको फुली रियलाइज करता हूँ और हतमी तौर पे जाहिर बात है जिस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन होगी कुछ जो लिंकेजेस गलत होंगे उनसे आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सर फहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। मैं थोड़ा ऐड करूँगा इसमें। आप देखें जितने भी इस तरह के होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के यहाँ पे ख़ास तौर पे कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने के लिए एफर्ट्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो भरपूर काम किया। पिछले चंद दिनों में देखेंगे हमने कितने नेटवर्क्स को अनर्थ किया, उनके लोगों को पकड़ा, तो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी उनके पकड़े जाने की, ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। तो हम इसमें यकीन रखते हैं अल्लाह की मदद में, और अल्लाह ताला ने इस दफ़ा भी हमें उसकी मेहरबानी थी कि हमारे जवानों ने जो पहले अलर्ट थे और उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, ज़रे बराबर शक नहीं है, क्योंकि आपने देखा मेरी भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस रेफरेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ इनका नेटवर्क था जो पकड़ा गया था। तो ये मैं समझता हूँ उनका फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट है जो उन्होंने किया।
सर मैडम नदीर शाह एयरवा न्यूज से। अच्छा, ये जो सबसे कम मुख्तसर वक्त का ये मुकाबला था जिसमें हमारे जो जवान थे इन्होंने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए 8 मिनट में इन दहशत गर्दों को जानू वापस किया। ये बताइएगा कि 10 जून को 2 हमले कराची में हुए रेंजर्स पे, 19 जून को 3 हमले हुए, मजबूरी तौर पर सिंध में रेंजर्स पे 5 हमले हुए, जिसमें ये बात साबित हो गई कि जो भारतीय जो दुश्मन है रॉ के जरिए DLA को न सिर्फ फंडिंग करा रहे बल्कि जो MPM लंदन और जो बुरफत वाले शफी बुरफत और अफजल शाह ये ऐसे दहशतगर्द हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी भी की है। रेंजर्स ने और SIU ने जो कार्रवाई की थी उसमें भी उन्होंने इंकशाफ किया कि न सिर्फ वो मीडिया पर्सन बल्कि CNG के सिलेंडर्स और दीगर जो दुकान है उनको भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। स्टॉक एक्सचेंज भी उन इमारतों में से जिसको हर वक्त रेड अलर्ट रहता है। तो ये जो दहशतगर्दों के इंकशाफात हो रहे हैं, तो ये जो कालदम तंजीम है जो सिंध में कराची में घुसी में काम कर रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन कब शुरू होगा? आपने बहुत एक अहम चीज की तरफ इशारा किया अपने सवाल में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो दहशतगर्दी और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक कंबाइंड एक्शन एक नेशनल विल के तहत लिया है, उससे जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्रिमिनल गैंग्स हैं उनकी जो काम करने की स्पेस है वो बहुत हद तक स्क्वीज हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। इसी वजह से मैंने वर्ड यूज किया था कि ये होसाइल एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और इसी फ्रस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले कुछ महीनों में एज DG रेंजर्स मैंने एज एडिशनल IG कराची CCPO मेमन साहब ने हमें इस चीज का पूरी तरह इदराक है कि जो मुल्क दुश्मन होसाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी अभी काविश है कि जो बचे कुचे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए, जिसमें से आपने जिनका नाम लिया MPM लंदन के कुछ एमिनेंट्स, कुछ सब नेशनलिस्ट के कुछ टेंडेंसीज में हैं और BLA जो बलूचिस्तान के अंदर गुमराह लोग हैं, इनका किसी तरह नेक्सस करके सूबे के अंदर अमन को खराब किया जाए। इसी की कड़ी 10 जून के अटैक्स थे, इसी की कड़ी 19 जून के अटैक है और इसको लिंक करना आज के अटैक से ये इंशाल्लाह जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे जाएंगी हम एस्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन इसको फिलहाल जोड़ना गलत नहीं होगा क्योंकि ये जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि होसाइल एजेंसीज के खिलाफ की मदद के बगैर ये काम करना नामुमकिन है। तो इंशाल्लाह हम भरपूर इस चीज का इदराक रखते हैं, इस चीज से वाकिफ हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नेक्सस बन रहे हैं और इंशाल्लाह उसके खिलाफ आप देखेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हुए हैं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इनकी तह तक पहुंचेंगे और इनकी जो स्पेस है उसको फर्दर श्रिंक करके इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बुखारी साहब, मेरा नाम फहीम सदीकी है, जियो से मेरा ताल्लुक है। ये नवंबर 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हुआ कराची में ही, बिल्कुल इसी तरह से 4 दहशतगर्द, चोरी की गाड़ी, इसी तरह से असला, इसी तरह से चने और दीगर चीजें थी। आज हमें लगता है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो ये सिर्फ 2 साल के अरसे में इतनी बड़ी दूसरी कार्रवाई उन्होंने मैनेज कर ली, तो क्या आप नहीं समझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है? इसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था? देखिए, हर चीज को इंटेलिजेंस फेलियर कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि ये शहर बहुत बड़ा शहर है और ये ऐसे नहीं होता कि एक गाड़ी के अंदर बैठ के 4 दहशतगर्द किसी जगह पर मुताबिक, क्योंकि जो भी क्लेम आया है वो भी यही है। तो इसके खिलाफ इस 1.5 साल के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ और इस असना में ये जो लोग थे, ये जो 8 मिनट के अंदर फारिग हो गए, तो मेरा ख्याल में इसमें हमें अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रिस्पांस था उसके ऊपर हमें फख्र होना चाहिए और उसके ऊपर हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका एतराफ करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिस्पांस इन प्लेस था और उनके जितने भी अहदाफ थे उनमें से एक भी वो हासिल नहीं कर सके। तो ये हमारी कामयाबी है, आई वुड से रादर देन फेलियर। जहां तक ये कैसे हुआ, जो गैप्स हैं मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, इंशाल्लाह उनको हम प्लग करेंगे जहां जहां गैप्स हैं और इंशाल्लाह फर्दर जिस तरह वक्त गुजरेगा इसमें और बेहतरी पाएंगे। मैं सर ऐड करूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा। आप देखें
کو کر رہے تھے. آپ کو بہت سارے ایسے پریس ریلیزز اور پریس کانفرنس ملیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ اس ٹائم کی اٹیمپٹ تھے اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا, لا انفورس ایجنسیز کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو انرتھ کیا اور ان کو یہ اٹیمپٹ کرنے نہیں دیا. جب یہ اگر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو نیچرلی ایک بڑی خبر بنتی ہے. جب کوئی اس طرح کا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے جو ابھی پری میچور ہوتا ہے تو اس کی اتنی بڑی خبر نہیں بنتی. تو ایک یہ کہ کامیابی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں فیلیور, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی کہ 1.5 سال کے عرصے میں بہت سارے پکڑے گئے اور وہ کر نہیں سکے. سیکنڈلی جو کامیابی ہم کہتے ہیں اس کو وہ یہ ہے کہ پولیس رینجرز ان کوآرڈینیشن وتھ انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کو بہت سارے اس طرح کے تھریٹ الرٹس ملتے رہے گے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ تھریٹس کلیکٹ کیے, ہمیں بتایا اور وہ باقاعدہ اس چیز کی نشاندہی کرتے تھے کہ کس کس جگہ پہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں, جس میں یہ اسٹاک ایکسچینج بھی شامل تھا. جب ان کے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی تھی, ہم اپنی فورسز کو اس طرح سے ڈپلوائے کرتے ہیں, ان کی اسٹیٹ آف الرٹنیس کو بہتر کرتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پریپیئرڈ تھے, جب وہ آئے ان کو ریسپانس ملا. اگر یہ اس طرح کی انٹیلیجنس نہ کلیکشن ہوتی تو شاید ہمارا اس طرح کا اچھا ریسپانس نہ ہوتا. تو بہتر ریسپانس کی وجہ سے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے اور ان کا نقصان ہوا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. آج آپ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ کوآرڈینیشن ہے. اسی طرح سے ہماری انٹیلیجنسز کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو شکر الحمدللہ اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے اس کے اندر الحمدللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو گناہ لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لایا جائے. تو آپ اس چیز کی انشاءاللہ فکر نہ کریں. باقی کراچی ایک بڑا ڈائیورس شہر ہے. اس میں تمام ایتھنیسٹی, تمام قومیت کے لوگ بستے ہیں, اس لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ شہر ہے. اور اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ گیپس ہیں. آپ کو جو ہمارا لا انفورسمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کا پروفائل ہے پچھلے کئی سالوں کا, وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کا شکر ہے بائی اینڈ لارج لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ایک ون انسیڈنٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ریسپانس واز اپ ٹو دا مارک اور ان کو ہم نے 8 منٹ کے اندر اپنی جگہ پر پہنچایا. تو انشاءاللہ. سر میرا نام فروخ بن مرتضیٰ ہے, سما ٹی وی سے. چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا تھا اور اسی طرف کا یہ حملہ معلوم ہوتا ہے BLA نے ہی ذمہ داری قبول کی ہے. کیا مزید اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے نیکسس کی بات کی, ماما قدیر کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بھارت سے اسلحہ مانگ رہا ہے, تو اس سے متعلق بتا دیں کہ کیا کہیں گے اس پر. جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بھارت کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. آج کل کے اس انفارمیشن ایج میں ہم سب نالجبل ہیں, ہم سب اویئر ہیں, ہم سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ہم ان کے جو اوپنلی بیانات ہیں پاکستان مخالف بیانات سے واقف ہیں, ہم ان کی فرسٹریشن سے واقف ہیں کہ ہماری جو امپرووڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے علاوہ ایک نیشنل ول کے تحت حاصل ہوئی ہے, اس سے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. یہ آپ سب کو اس چیز کا ادراک ہے اور مجھے بحیثیت ایک لا انفورسر اس چیز کا بالکل بہت گہرے طریقے سے اس پہ یقین ہے کہ یہ ایک را اسپانسرڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس طرح کے اور اٹیکس ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک جو تھریٹ ہے اس کو کنٹینیوسلی ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا ریسپانس جو ہے اس کے حساب سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں کہ حکمت عملی اپنی اپڈیٹ کرنا, جس کے اندر ہماری پولیس کی اور دیگر جو انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ایک الحمدللہ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. اور ہم دونوں کا یہاں ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کرنا اس چیز کا ایک ثبوت ہے. اور جو ہماری ایک ریگولر ایک کنورسیشن چلتی ہے تمام لا انفورسمنٹ انفورسرز کے ساتھ, اور ہمارا جو ریسپانس اپڈیٹ ہوتا ہے تھریٹ کے ساتھ, یہ اسی کا نتیجہ ہے جسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 8 منٹ کے اندر ہم نے ان لوگوں کو اس جگہ پہنچایا جہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آئندہ بھی کوئی ایسی تھریٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی اسی طرح بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کریں. بہت آئی تھنک ون بائی ون وی کین ٹیک دا کوشچن فرسٹ. آپ سے لے لیتے ہیں.
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल एक नई क्रिएट हुई है, तो इसके लिए आप इस दौरान आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि आवाम के लिए कोई एक अच्छा सा पैगाम दें ताकि इस मसले पे थोड़ा जी बिल्कुल, एक्सट्रीमली नाइस क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि मैं आवाम को ये बताना चाहूँगा कि 8 मिनट में ये इंसिडेंट खत्म हुआ और अगले 25 मिनट में यानी 10 बज के तकरीबन 35-40 मिनट पे जिंदगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और उसके अतराफ में बहाल हो चुकी थी। और ना सिर्फ बहाल हो चुकी थी बल्कि स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी पहले से ज्यादा तेज हो गई थी टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। सो मेरा पैगाम कराची के अवाम के लिए बिलखसूस और जनरली सबके लिए वो ये है कि आप एतमाद रखें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर, रेंजर्स, पुलिस और बाकी इदारे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें और आप जो एक नॉर्मल लाइफ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे अर्ज़ किया आधे घंटे बाद शुरू हो गई थी, आप उसको एंजॉय करें और ये काम आप हमारे पर छोड़ दें और जैसे हम पहले भी खिदमत करते रहे आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नबी अब्बास टीवी से। सर मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा कि 2 साल तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन PSX को टारगेट करना क्या आप ही समझते हैं कि एजेंसीज या जो हॉस्टल एजेंसीज हैं वो मैसेज देना चाह रही हैं कि इनके पास भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं? मेरा ख्याल में वो चाहते तो यही थे जो आपने कहा कि वो इतने बड़े टारगेट को जो कि एक आइकॉनिक है उसको टारगेट करें और दुनिया को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान इज एन अनसेफ कंट्री, कराची इज एन अनसेफ सिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, टू शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इनटू आवर ग्रेट कंट्री। लेकिन मेरा ख्याल में ये काम करने थे उन्होंने अपना मुंह काला किया और दुनिया को ये मैसेज दिया कि जो इसके खिलाफ जो काम करता है उसका क्या असर होता है। सो उसकी वाज़ेह सबूत स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी है कि बजाय जिसको वो नीचे करना चाहते थे वो उल्टा तेज हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बहाल हुआ है पाकिस्तान की सूरत हाल में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स एंड पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उन्होंने हमारी लॉ एनफोर्समेंट की लाज रखी है और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और उनके जो अहदाफ थे उनको 8 मिनट के अंदर मट्टी के अंदर तब्दील किया। सर इसमें 1 मिनट में इसके अंदर 8 मिनट के अंदर दहशतगर्दों को जन्म हासिल करने वाले जो बहादुर एहलकार थे सिक्योरिटी गार्ड, में एक शहीद और हो गया, 3 शहीद हो गए और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर। उनके नाम बताएं ताकि उनको उनका क्रेडिट मिल सके और उनके बारे में बताएं कितने इसमें जख्मियों के नाम है और जो शोधा के नाम। इसमें जो पहले वाला सवाल है फिर मैं आपके पास आता हूँ। देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कोई साइलोस में काम नहीं करते, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी साइलोस में काम नहीं करती। ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो हम पब्लिक के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने कहा कि भाई पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की कोऑर्डिनेशन इस इंसिडेंट में हुई है, पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, वो इन्फॉर्मेशन के हद तक हो या मतलब उनके रिस्पांस के हद तक हो। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि हमें घबराना नहीं चाहिए और हम इस तरह के जो फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट्स हैं उनका पहले भी मुकाबला किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ इस बात की है कि ये डिफरेंट किस्म की एक वॉर गेम चलती है कि एक इंसिडेंट होता है उसके बाद फिर वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट किस्म के मैसेजेस फैलाना शुरू करते हैं, तो उस पर बिल्कुल ना जाएं। अपना जो डे है उसको वो अपना काम करें। ये झूठी खबरें और झूठी चीज़ों की जो है ना बिल्कुल कान न धरें। हम एक ऐसे माहौल में अभी आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अच्छी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, हमारा मुल्क सही तरीके से चल रहा है, हमारे स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इफेक्टिव हैं इन इस तरह के बैड कैरेक्टर्स के लिए। तो किसी किस्म की कोई मतलब कान धरने की ज़रूरत नहीं है गलत खबरों के अगेंस्ट। सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा, मतलब ये कि पहले तो ये कि मैं आईजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 20 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया। और मैं डीजी रेंजर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जवानों के लिए भी अनाउंस करें कि हम उन जवानों को जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम रिवॉर्ड दे सकें। सेकेंडली एक हमारा इसमें पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ है, वो थाने से था, उनका कोर्ट पुलिस से ताल्लुक था, लेकिन ये कि वो शायद था, हाँ बिल्कुल उसका नाम शायद है, तो वो
वहाँ पे डिप्लॉयड था और उसकी शहादत हुई। तो आज उसको हम इंशाल्लाह असर के बाद फुल क्रेडिट के साथ जो हमारा शहीद का प्रोटोकॉल होता है उस पर उसके लिए नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे और उसको जो अप्रिसिएशन है वो देंगे और उसके जितने भी शहीद के राइट्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो इंशाल्लाह हम उसको देंगे। जो हमारे ज़ख्मी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 3 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंडीशन बेहतर है, स्टेबल है और मैं उनसे मिला हूँ और उनके फुल स्पिरिट में है। तो जो उनका बेनिफिट है एज एन इंजर्ड पुलिस ऑफिसर इन लाइव इनकाउंटर वो इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द देंगे और उनका इलाज जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आपके पाकिस्तान रेंजर रिपोर्टर आने का और हमसे बातचीत करने का। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया था। इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। आपको बताएं कि तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक भी फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि दहशत गर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए थे। एक शहरी भी जाँ बहक हुआ।